Hello guys, how are you? I think all of you are well in your home during the COVID-19 pandemic. So guys, before going to start my topic, I just kindly request to you that you can subscribe my channel and share with your friend, and also put the like button and also give some feedback regarding my lecture. And if you are the faculty of any university or any engineering college in the Department of Electrical Engineering across the country, you can subscribe my channel and share with your colleague as well as your student. So guys, these are the reference book for the particular topics and particular reference material. You can follow these particular materials to complete the conceptual knowledge of the particular topic delivered by me. So guys, today I am going to start a new topic, new units of the energy auditing and management subject, electrical engineering, 7th semester IKGPTU Kapurthala, and the topic is energy management. Then the first topic is definition of energy management. What is energy management? Energy management क्या होता है? The term energy management means many things to many people. One definition of energy management is the judicious and effective use of energy to maximize profit and enhance competitive positions. Means without affecting the our system, a system that will provide a maximize our profit and enhance the competitive position is called energy management. तो ये जो definition है, this definition is given by Caphart, Turner and Kennedy, Guide to Energy Management, Fairmont Press, NC 1997. जो मैंने आपको ये बुक लिखी है, मैंने बुक आपको जो रेफरेंस में दिया हुआ है, इसी बुक में से ये मैंने डेफिनेशन लिया हुआ है गाइज. तो आप इस डेफिनेशन को हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कहीं पे किसी एनर्जी सेविंग या एनर्जी एफिशिएंसी डिपार्टमेंट में जाएंगे पर्टिकुलर किसी कंपनी के, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉर्मल मैनेजमेंट एज वेल एज एनर्जी मैनेजमेंट. देन यू कैन डिफाइन द टर्म्स एंड गिव द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक्स. Then another comprehensive definition of energy management is the strategy of adjusting and optimizing energy using system and procedure so as to reduce energy requirement per unit of output while holding constant or reducing total cost of producing the output from these systems. Means overall energy management is directly related to the energy conservation and energy efficiency. मैंने आपको पहले ही बताया था कि if you manage your home demand of electricity and manage the putting some energy efficient device, if you can reduce a unit of electrical energy per month or 2 unit of electrical energy per month, definitely it's a type of energy management without affecting your overall performance and overall system. So guys, this is called energy definition. अलग अलग और भी definition है, but main definitions आपको यही दोनों याद रखने हैं. Comprehensive definition जो मैंने नीचे दिया है, and the definition is the judicious and effective use of energy to maximize profit and enhance competitive positions by Caphart, Turner and Kennedy की जो बुक लिखी हुई है हैंडबुक ऑफ एनर्जी ऑडिट, उससे आप जाके ये चीज कर सकते हैं गाइज. तो ये था एक एनर्जी मैनेजमेंट का डेफिनेशन कि एनर्जी मैनेजमेंट है क्या. कई बार आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है. क्लियर है? तो आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, आपको समझ में आ गई होगी ये चीज कि एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी मैनेजमेंट क्या है. तो अब जो है हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. द नेक्स्ट स्लाइड इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एनर्जी ऑडिट इज डिफाइंड. जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट क्या है 2001, इसके थ्रू क्या क्या बना था. तो एनर्जी जो कंजर्वेशन एक्ट 2001 इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी मैनेजमेंट को डिफाइन किया वो आप देखिए. वो कहता है द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट containing recommendations for improving energy efficiency with cost benefit analysis and an action plan to reduce energy consumption. Means
सारा का सारा चीज, चाहे एनर्जी एफिशिएंसी हो या रिड्यूस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन हो या एनर्जी की पूरी बिलिंग हो या टेक्निकल उस पर रिपोर्ट हो, सारा का सारा जो कंप्रिहेंसिव स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी मैनेजमेंट। तो अब जब हमने एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू हैंडबुक ऑफ एनर्जी ऑडिट बाय जो आपका टर्नर और कैनेडी ने लिखा है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 भी आपने ये चीज देख लिया कि व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट, क्या होता है। अब सेकेंड थिंग हमारे माइंड में जाता है कि सर हम एनर्जी मैनेजमेंट तो कर रहे हैं बट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट। कई बार आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जब आप फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरव्यूअर को या एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर देंगे एनर्जी मैनेजमेंट का डेफिनेशन देके, देन सेकंड क्वेश्चन 110% वो आपसे पूछेगा ही कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। देन वी हैव ए 2 ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज टू मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट ऑब्लिक वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। क्लियर है ये चीज? ये कह रहा है कि मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट मीन्स जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसका जो पर यूनिट कॉस्ट जा रहा है उसको मिनिमाइज करना। सेकेंड हो रहा है वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन, मतलब मिनिमाइज किसको करना है, वेस्ट को भी मिनिमाइज करना है और उसको कब करना है, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। मीन्स जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी उसमें किसी भी तरह का कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। एंड सेकेंड मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको पॉल्यूशंस बताए थे उसमें आपने देखा था कि जब भी हम एनर्जी के वन फॉर्म को अदर फॉर्म में चेंज करते हैं, चाहे मैं कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, चाहे मैं हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, चाहे मैं न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं, जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स मिलके हमारे पूरे के पूरे इकोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो these are the 2 objectives of main objectives of energy management जो आपको बताना है इंटरव्यूअर को, या अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, देन यू हैव टू राइट 2 पैरामीटर्स लाइक टू मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट ऑब्लिक वेस्ट without affecting production and quality, and second is to minimize environmental effect during the transformation of energy from one form to other form. Clear है guys? Next part जो है वो है आपका एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ जो एनर्जी ऑडिट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो कहता है उसमें ये कहता है एनर्जी ऑडिट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वेज एनर्जी एंड फ्यूल आर यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर वेस्ट कैन अकर एंड वेयर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट। मीन्स एनर्जी ऑडिट हमें क्या हेल्प करता है, एनर्जी ऑडिट हमें हेल्प करता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में या हमारे सिस्टम में वेस्ट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है, एंड हाउ इट विल मिनिमाइज उसको भी करता है, और कैसे हम पूरे के पूरे सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं उसके स्कोप को फाइंड आउट करता है एनर्जी ऑडिट के द्वारा। सेकेंड है इन जनरल एनर्जी ऑडिट इज द ट्रांसलेशन ऑफ कंजर्वेशन आइडियाज इनटू रियलिटीज। मीन्स जो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के आइडियाज लेके आते हैं या थिंक करते हैं या हम लोग खुद R&D करते हैं उसको रियलिटी में लाने की प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑडिटिंग बाय लेंडिंग टेक्निकली फिजिबल सॉल्यूशंस विद इकोनॉमिक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशन विदाउट ए स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं है बट जो हमें कंजर्वेशन के आइडियाज है उसको हमें कैसे अपने सिस्टम में लाना है वो एनर्जी ऑडिट के थ्रू ही करेंगे ताकि हमारा सिस्टम जो है वो एफिशिएंट और मोस्ट इकोनॉमिकल बन पाए विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी। थर्ड क्या कहता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट। अब एनर्जी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की भी बात हम करेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो उसमें यह कहा गया है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट is to determine ways to reduce energy consumption per unit of product output or to lower operating cost. It means अब आप देखिए कि पर यूनिट की बात हो रही है। अब एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि चलिए आपने घर में आप स्टडी टेबल पे बैठे हुए, तो आपके घर में जनरली स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप हमेशा अपने घर में 3 टाइप की लाइट मैकेनिज्म करें। पहला, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उस टाइम कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए,
एक डिवाइस वो लगाइए। दूसरा, जब आप सोने जा रहे हैं उस टाइम आपके घर में रोशनी कितनी होनी चाहिए उसके लिए लगाइए। तीसरा, जब आप नॉर्मल टीवी वी देख रहे हैं और हल्का लाइट चाहिए उसके लिए 3 अलग अलग टाइप के आप लगाएंगे लाइट। आपका स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, बट रनिंग कॉस्ट जो है वो उस सिस्टम का पेबैक पीरियड कम करके आपको बाद में बेनिफिट ही देगा। तो आपके घर में आप खुद एक ऑडिट करिए कि किस जगह पे कितनी रोशनी की रिक्वायरमेंट है और किस कलर के लाइट की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से आप देखिए कि मार्केट में कौन सा एफिशिएंट डिवाइस अवेलेबल है, उसी डिवाइस को आप पुट करिए अपने घरों में, ताकि आप एनर्जी जो आपका कंजम्पशन है उसको आप कम कर सकें। एनर्जी ऑडिट प्रोवाइड से बेंचमार्क, एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड बेंचमार्क फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर प्लानिंग ए मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एनर्जी ऑडिट जो करते हैं वो एक बेंचमार्क, एक रेफरेंस आपको प्रोवाइड कराते हैं कि दिस रेफरेंस के थ्रू आप जाइए और आप अपना पूरा का पूरा जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी सिस्टम को प्लान वे में लेके चलिए। तो प्रॉपर प्लानिंग जो है उसका वो क्या करता है, हमें मोर इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट। ठीक है, तो टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट की बात जब हम करेंगे तो टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट में क्या आएगा, ये 4-5 पैरामीटर्स को देख के जनरली बनाया जाता है, बट मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर मेंशन किए हैं। द टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट टू बी परफॉर्म डिपेंड्स ऑन, पहला है फंक्शन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा है डेप्थ ऑफ विच फाइनल ऑडिट इज नीडेड, यहाँ पे आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री अलग कर सकते हैं। तीसरा है पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिजायर्ड, तो पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड जो है वो कॉस्ट रिडक्शन का डिजायर्ड जो है वो आपको देखना है। इन तीनों पैरामीटर के बेस पे जनरली द एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 टाइप्स। जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में इसी लेक्चर में कवर करूंगा बिकॉज इट्स ए वेरी शॉर्ट पार्ट, बट सेकेंड जो है डिटेल्ड ऑडिट, दैट विल बी कवर ए इंटायर लेक्चर ऑफ 15 to 20 मिनट्स। डिटेल्ड ऑडिट को समझाने के लिए मुझे एक पूरा का पूरा 15 से 20 मिनट का एक कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा टू डिलीवर द ओवरऑल मेथडोलॉजी ड्यूरिंग द डिटेल्ड ऑडिट। तो पहला जो हम लोग प्रीलिमिनरी ऑडिट है, जो एक बेसिक ऑडिट है जो आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले आप ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए जिसके बेस पे हम लोग जो है वो एनर्जी ऑडिट को क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट इज ए रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज टू। अब क्या क्या होता है प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट मेथडोलॉजी में, कौन कौन से पैरामीटर हम लोग कंसीडर करते हैं, वो सारा का सारा आप इसमें देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है एस्टैब्लिश एनर्जी कंजम्पशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके कितना एनर्जी कंजम्पशन है ऑर्गेनाइजेशन का, पहले आप वो एस्टैब्लिश करिए कि कितना एट प्रेजेंट आप एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कितने वॉट किलोवाट की आपने सिस्टम से सप्लाई लिया हुआ या मेगावाट की या किलोवाट की, जो है आपको पहले आप वो फाइंड आउट करिए। दूसरा पॉइंट कहता है एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग। अब आप पूरा सिस्टम विजिट करने के बाद आप देखिए कि किस किस पॉइंट पे हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं, स्कोप कहाँ कहाँ पे है जहाँ जहाँ पे हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तीसरा है आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली एंड इजीएस्ट एरियाज ऑफ अटेंशन। अब जब आप सारा का सारा 5-6 पॉइंट देख लेंगे, उसमें आपको सबसे मोस्ट लाइकली पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आप इजीली उसको अटेंशन ले सकते हैं और उसको आप फटाक से कंप्लीट करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आपने एक विजिट किया, पूरे के पूरे सब स्टेशन आपने अपने घर को विजिट किया, आपने देखा कि यार यहाँ पे तो ट्यूबलाइट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो 9 वाट की एलईडी से काम चल जाता है। आपने फटाक से उस ट्यूबलाइट को वहां से रिमूव करके 9 वाट का लगा दिया, तो आपने इमीडिएटली एनर्जी सेव कर दी। सेकेंड, आपने देखा कि यार ये जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ बालकनी लॉबी में, इट्स अ वेरी गुड क्रॉस वेंटिलेशन, यहाँ पे अच्छा है, हमें पंखे की जरूरत नहीं है, हमने पंखा वहां से हटा दिया। उसी तरह से आपको जो आपका इजीएस्ट एरिया रहेगा उस पर आपको अटेंशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहता है आपको, फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई इमीडिएट स्पेशली नो ऑब्लिक लो कॉस्ट इंप्रूवमेंट ऑब्लिक सेविंग। मीन्स आपको ऐसा देखना है कि जिसमें कोई या बिल्कुल लो कॉस्ट हो या बिल्कुल ही कॉस्ट नहीं लगे, और उसको तुरंत हटाने से हमारा जो है वो सिस्टम एफिशिएंट हो सकता है।
उसको हम इमीडिएटली वहां से हटा दें। अब 5वें नंबर पे आता है बेंचमार्किंग, दैट इज कॉल्ड सेट ए रेफरेंस पॉइंट। आपको एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा कि दीज आर दी रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारा अभी 1 किलोवाट हो रहा है, तो हम इसको 800 पे कैसे लाए, तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लिया कि हमें आफ्टर एनर्जी ऑडिट जो है वो हमें 800 पे इसको लेके जाना है। तो मैंने एक बेंचमार्क डिसाइड कर लिया, दैट विल बी दी 800 वाट। अब नेक्स्ट पॉइंट करता है आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी मेजरमेंट। अब हमें उसके बाद उस एरिया की तरफ देखना है जिस एरिया में हमें डिटेल्ड स्टडी के लिए जाना है या डिटेल्ड मेजरमेंट के लिए जाना है। लास्ट में जो पॉइंट है वो है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेज एग्जिस्टिंग और इजिली ऑब्टेन्ड डाटा। इसके थ्रू हम लोग एग्जिस्टिंग और जो डाटा अवेलेबल है उसके बेस पे ही हम लोग करते हैं। इसमें नया मेथडोलॉजी हम लोग कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट करते। वो हम किस में करेंगे, जब डिटेल्ड ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका था, ये इंटायर एक टॉपिक था आपका, दैट विल बी कवर द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। आपको पता चल गया कि डेफिनेशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देन आप गए एनर्जी ऑडिट पे, एनर्जी ऑडिट का आपने ऑब्जेक्टिव देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या एनर्जी ऑडिट होता है। देन आपने कवर किया कि टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी एंड सेकेंड इज डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। तो प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट जो है उसके बारे में हम लोग सारे पॉइंट इस वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलिमिनरी ऑडिट आप भी कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो, आप देख के आप भी कर सकते हैं। और अपने घर में आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू बिकम ए एनर्जी एफिशिएंट इंजीनियर। आप अपने घर में देखिए कि कहां कहां पे आप एनर्जी एफिशिएंसी कर सकते हैं और उसको घर में आप इंप्लीमेंट करो, तभी आपको उसका प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते थे वो नॉर्मली डेफिनेशंस है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी ऑडिट एंड डेफिनेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट के डेफिनेशन, एनर्जी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट क्या है और प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिट कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज अपडेटेड लेक्चर जो इस टॉपिक का है पर्टिकुलर, जो कि इससे ज्यादा टाइम का होगा, दैट विल बी रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। दिसंबर में मैं सारे वीडियोज बनाऊंगा उसको। अभी मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं अक्टूबर 31 तक या अक्टूबर 15 तक आपके सब्जेक्ट धीरे धीरे खत्म कर दूं सिलेबस। तो मैं प्रयास में हूं कि 31 अक्टूबर तक आपके 5th और 7th सेमेस्टर के सिलेबस को कंप्लीट कर दूं, ताकि उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर और 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को लेके आऊंगा उन बच्चों के। तो क्योंकि वो कुछ लीट में एडमिशंस आ रहे हैं और कुछ इसमें, तो उनके क्लासेस लेट स्टार्ट होंगे, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेकिन पेपर से पहले सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगा, आप उसके लिए बॉदर नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है कि हर एक यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फ्रॉम 3rd, 5th एंड 7th एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा, मेरे चैनल पे आएगा। फर्स्ट आई कंप्लीट द IKG-PTU, देन आई विल कंप्लीट द इंटायर सब्जेक्ट। लाइक जब मैं मशीन शुरू करूंगा तो ट्रांसफार्मर अलग होगा, DC अलग होगा, इंडक्शन अलग होगा, सिंक्रोनस अलग होगा, स्पेशल मोटर अलग होगा, और वहां टॉपिक वाइज कवर होगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपकी वो फोल्डर होगी। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है आप उसको उठाइए और उस प्लेलिस्ट से तैयार कर लीजिए। सो गाइज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। और अगर आप फैकल्टी है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं पे भी ऑल अक्रॉस द कंट्री, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कलीग को और अपने स्टूडेंट को जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।